Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. I, Shama Parveen, your EVS tutor, welcome you all in my today's session. Okay, so in our today's session, my dear student, we are going to start chapter number 11. Okay, and the name of this chapter is matter. Now, what is the meaning of matter? In this chapter, we are going to see. Okay. But before starting this chapter, I would like to give you glimpses of those topics which we are going to cover under this chapter. Okay, see, in this chapter we are going to see what is the meaning of matter. Okay, what are the types of states of matter. Okay, and what happen when all those matter states changes their form. Okay, and what is the meaning of solute, solvent, and solution. Okay. So all this thing we are going to see in this chapter. So come with me and start the chapter. First of all, my dear student, know what is the meaning of matter. Matter क्या होता है पहले ये जानिए. देखिए, object that has take up space and have mass are called matter. मैटर हर वो चीज है जिसका अपना एक स्पेस होता है और जिसका अपना एक मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं. जस्ट लाइक हेयर आई एम टेकिंग अ डिजिटल पेन. ओके, ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन ये एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक शेप है, एक साइज है और साथ ही साथ इसका अपना एक मास है, इसीलिए ये मैटर है. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? एनी सब्सटेंसेस व्हिच हैव देयर स्पेस एंड हैविंग देयर mass is called as matter. Everything around you is made up of matters. हमारे आसपास जितनी भी चीजें सब कुछ मैटर है. ठीक है. Matter includes all substances, items and objects whether they are solid, liquid or gas. Matter हर वो चीज है जिसका अपना शेप होता है, साइज होता है और साथ ही साथ अपना मास होता है. भले ही वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, वो सब मैटर है. ठीक है. Everything in this universe is matter. So in overall everything, every minute से minute particle से लेके infinity तक जितने भी particles हैं वो सब क्या है हमारे, वो सब हमारे matter हैं. ठीक है. Or in other words we can say that any substance that has a mass and occupies space. Okay, so this is another definition of matter, that any substance that has mass and occupies space is called matter. Okay, so this is the definition of matter. Now what is the meaning of matter? Anything which occupies space and having a weight is called as mass, is called as matter. Okay, now अभी मैटर तो हमने बोल दिया, पर ये मैटर बना किस चीज से होता है. ठीक है, चलो देखते हैं. मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किन किन चीजों से बना है. सो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैटर दो चीजों से मिलकर बनता है, एटम से बनता है और मॉलिक्यूल से बनता है. ठीक है, तो मैटर देखो किस चीज से बना है, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज molecules. But what is the meaning of atom? If matter is made up of tiny particles called molecules, then what is the meaning of atom? Atom meaning these molecules are further composed of very small particles. Means the tiny particles through which matter is made up of. Okay, it's called molecules. These molecules are further classified or further divided into tiny particles. That tiny particles is called as atom. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है. ठीक है, इस मॉलिक्यूल का भी एक छोटा पार्ट होता है, उसको हम एटम बोलते हैं. ठीक है, ये देखो, ये जो है ये आपका मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल जो फर्दर डिवाइड होता है और छोटे पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं एटम. ठीक है, उसको हम कहते हैं फिर एटम. ठीक है, सो एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलके बनता है आपका मैटर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एटम. सी, मॉलिक्यूल्स आर further composed of very small particles called atom. Okay, we can say that atoms are the smallest particle of which matter is made up. तो combinedly आप ये कह सकते हो कि मैटर सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसका नाम आपका एटम है. ठीक है, but my dear students, we can't see molecule with our naked eye.
ठीक है, हम अपनी आंखों से मॉलिक्यूल्स और एटम्स को नहीं देख सकते हैं. ओके, वी कैन सी मॉलिक्यूल्स अंडर ओनली माइक्रोस्कोप. ओके, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं. ठीक है, द मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट. ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के अलग अलग होते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर इज गिवन. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग बिहाइंड दिस पिक्चर. हियर solid matter is divided into three parts. Okay, solid, liquid and gas. So the first picture is your solid. Okay, now what is the meaning of solid? सॉलिड में क्या होता है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है. अब देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं कि एकदम फ्रीली मूव कर सके. ठीक है, तो अब ये कह सकते हो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें कोई स्पेस ही नहीं होता है. जैसे ये सॉलिड आप देख रहे हैं, ये देखो ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देखो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं. ठीक है, देखो देखो इनमें ना स्पेस ही नहीं है बीच में, वो इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इसीलिए सॉलिड बिल्कुल सॉलिड होता है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड. ठीक है, मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं. जैसे देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर ऐसे करके है. ठीक है, तो आप देख सकते हो एक तरफ जहां सॉलिड में बिल्कुल स्पेस नहीं है, वहीं लिक्विड में ये देख लो बीच बीच में स्पेसेस हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिक्विड दे आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन gaseous form. See, molecules of the gases are loosely packed. ठीक है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स एकदम स्कैटर्ड है. एक आपका मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा. इस तरीके से इनमें ये पैकिंग की होती है मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, सो सॉलिड में ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में इनमें स्पेस होता है बीच में. ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, और गैस में तो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, so these are the three forms of your matter. Okay, now we are going to see all this form in detail. Okay, see, states of matter we already discussed. The state of matter is divided into three parts: solid, liquid and gas. So we are going to discuss this solid, liquid and gas in detail. First of all we are going to discuss about solid. Solid का क्या मतलब होता है, wood block is solid. Solid का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लकड़ी ले लीजिए. ठीक है, वुड ब्लॉक क्या है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सॉलिड का. अ सॉलिड हैज अ सर्टेन साइज एंड शेप. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड जो होता है उसका साइज होता है, उसका शेप भी होता है. ठीक है, देखो अब देख रहे हो यहाँ पे इसका एक शेप है, एक साइज है. ठीक है, तो सॉलिड का क्या होगा, सॉलिड का अपना एक शेप होता है और अपनी एक साइज होती है. ठीक है, द वुड ब्लॉक डज नॉट चेंज इट्स साइज और शेप. In solid, the molecules are packed very close to each other. They have very strong force of attraction between them, so they are not free to move. अच्छा, wood block क्या होता है, wood block का जो शेप होगा, जो साइज होगा, वो उसी शेप और साइज में रहेगा, वो खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और वो टाइट क्यों पैक्ड हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं टाइटली. क्यों पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है. वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में स्ट्रांग होता है कि वो उनको मूव ही नहीं करने देते हैं. ठीक है, सॉलिड डिफर ग्रेटली इन नेचर. सम सॉलिड्स लाइक स्टोन्स एंड डायमंड्स आर वेरी हार्ड. अच्छा, सॉलिड में ना कुछ बहुत हार्ड होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, सो द सॉलिड विच आर वेरी हार्ड इन नेचर आर stones and diamonds. Okay, stones and diamonds are very hard solid material, that's why they are not very easily breakable. Okay, so here are some facts for you. Powders are solid form. पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन वो लिक्विड की तरह बहता है. जब आप टैल्कम पाउडर को स्प्रे करते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरा लिक्विड की तरह फ्लो हो रहा है. ठीक है, चलो, so here you can see the other examples of our solid: book, brick, stone, table. So these all are the examples of solid.
Now we are going to see the second part of matter, liquid. Okay, liquid क्या है? देखो, लिक्विड का अपना साइज होता है, अपना वॉल्यूम होता है. सॉलिड हैव अ साइज, वॉल्यूम एंड शेप. लिक्विड on the other hand side have a definite size, have a definite volume, but don't have any shape. लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है. बट मिल्क डजंट हैव अ डेफिनेट शेप. जैसे आपने एग्जांपल लिया मिल्क का अपना एक साइज है, अपना एक वॉल्यूम है, लेकिन क्या उसका कोई शेप है? नहीं है. मिल्क का कोई शेप नहीं है, बिकॉज मिल्क इज अ लिक्विड. ओके, इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. आप लिक्विड को जिसमें भी डालोगे ना, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे. The molecules in liquids are not so closely packed as in solid and are free to move about. They can flow easily. So solid में molecules क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा उनमें attraction force ज्यादा होता है. That's why they're very closely packed. Okay? Liquid में क्या होता है? ये closely packed नहीं होते हैं. That's why they can move easily. Okay? और इसीलिए जब वो move करते हैं, इसका मतलब क्या है? Solid liquid can flow easily. Okay? So here are the examples of our liquid: water, milk and oil. Okay, now we are going to see, my dear students, gases. Okay, this is the third and last form of matter. Gases का है क्या है? We need oxygen to live. We all need oxygen for our own survival. We can't see oxygen. See, we need oxygen, we breathe oxygen, but can we see oxygen? No. Gases do not have fixed shape and fill all the available space because their molecules are very loosely packed. गैसेस का ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, ठीक है. इसीलिए वो कहीं पे भी आराम से फिट हो सकते हैं, ठीक है. सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, साइज. ओके, लिक्विड ऑन द अदर हैंड, दे हैव अ डेफिनेट साइज एंड वॉल्यूम बट डोंट हैव शेप. गैसेस neither have size, neither have shape. Okay, so here you can see gas in the hot air balloon, LPG gas is filled in cylinders. Okay, now this is all about the three states of matter. Okay, now we are going to read about interchange of states. ठीक है, इन तीनों states में interchange होता है, ठीक है. मीन्स सॉलिड लिक्विड होता है, लिक्विड गैस होता है, गैस सॉलिड हो जाता है, फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाता है. तो ये सब इन लोगों में आपस में ना इंटरचेंजिंग चलती रहती है. सो लेट्स हैव अ लुक, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, let's discuss some facts. Since molecules of gases have large space between them, they can be compressed easily. See, liquid and solid means solid is non-compressible. You can't compress solid, okay? But gas, you can compress gases, okay? Now, the three states of matter are interchangeable in some substances. ये जो तीनों state of matter है ना, इन्हें आप बीच-बीच में exchange भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है. These substances can change from one state to another, but not all substances can change their states. अच्छा, हम लोग बस इन्हें कभी कभी चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सब सॉलिड पूरा का पूरा सॉलिड आपका लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो सकता है. बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है. या पूरा गैस आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इनके कुछ पार्ट्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. आओ देखते हैं वो. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर occurs only because of temperature change. So the interchanging situation rises between all these three state of matter only due to temperature changes. Okay, so here we are going to see the name of those interchangeable states. So the first thing which we are going to discuss is melting. What is the meaning of melting? See, when solid is heated or its temperature increases, it changes into liquid form. ठीक है. When we heat any solid substance, I'm taking an example of ice. Okay, when you heat ice, ice is in solid form. Okay, so when you start heating it, it automatically converted into liquid immediately. Okay, so this process is known as melting. पहले तो वो सॉलिड था, लेकिन आपने जैसे उसे हीट किया, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में हो गया. तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सो दिस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज योर मेल्टिंग पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन पॉइंट? लेट्स हैव अ लुक. देखो, when a liquid is heated or its temperature is increased, it changes into a gas. ठीक है, आप लिक्विड को जब बहुत हाई फ्लेम पे बॉईल करते हो,
ठीक है, तो वो क्या होता है, वो गैस के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर इवापोरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन, माय डियर स्टूडेंट्स? द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन इज व्हेन यू स्टार्ट बॉइलिंग लिक्विड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, then that liquid is automatically converted into gaseous state. That's why this change from liquid to its gaseous state is known as evaporation process. Now what is the meaning of boiling process? See, if the heating is slow and it is boiling, if the heating is fast, okay, see, if the heating is slow and it is boiling, okay, so boiling का मतलब क्या है, हम लोग जिस टेम्परेचर पे उसको उबालते हैं, खौलाते हैं ना, उसी को बॉइलिंग कहा जाता है, ठीक है, जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन. अब ये कंडेंसेशन क्या है? सी, व्हेन अ गैस इज कूल डाउन और इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इट बिकम्स अ लिक्विड. हम जो क्या करते हैं, कोई गैस को वो करते हैं, गैस को हम ठंडा करते हैं, ठीक है. जब भी हम किसी गैस को हम ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो वो जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, so the change from gaseous state to its liquid state is known as your condensation process. Okay, now freezing. What is the meaning of freezing? See, when a liquid is cooled down or its temperature is reduced, it becomes a solid. ठीक है, कोई भी लिक्विड है, आपने उसको क्या किया, उसका टेम्परेचर एकदम बिल्कुल डाउन हो गया. डाउन होने के बाद वो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, जैसे आइस, ठीक है. आइस को आपने गर्म किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. आप उस कन्वर्टेड लिक्विड को एकदम टेम्परेचर कम करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए, वो क्या होगा, वंस अ लिक्विड नाउ बिकम अ सॉलिड स्टेट, ठीक है. तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग के थ्रू होता है, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड freezing. Okay, now my dear student, this is a picture in which you can see states of water are interchangeable. Okay, here you can see, first of all, this is a boy, okay, he takes out a ice tray, okay, having a ice in it, okay, and after that he started heating, okay, means he started melting process, okay. Melting किसको मेल्ट कर रहा है, आइस को मेल्ट कर रहा है, ओके. तो जब ये आइस को मेल्ट कर रहा है, ये इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है. सो वंस अ सॉलिड आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ओके, एंड दैट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू steam, means gaseous form, and that gaseous form once again cool down through the process of condensation, and once a gas now converted into liquid, and now it again converted into a water. ओके, सो आप देख सकते हो, वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर से इस आइस ट्रे को आपने फ्रिज में डाल दिया. तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इंटरचेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, ठीक है. सो ये देखो, दिस इज द process taking place here. Ice is in solid form, then due to the heating process it converted into water in liquid form, and again due to heating or evaporation method it converted into water vapor, and water vapor is your gaseous form. Once again this gaseous form, due to the method of condensation, again converted into water, which is in liquid form. This liquid form, when that water is cooled down, it converted into again solid form due to the process of freezing. ठीक है, चलो. अच्छा, एक यहाँ पे ना एक्टिविटी है आपके लिए जो आपको करनी है. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. अभी तक तो हमने देखा कि मैटर्स के स्टेट्स चेंज हो रहे हैं. अच्छा, क्या हो अगर सॉलिड जो है आपके लिक्विड में ही घुल जाए, क्या होगा उससे? सॉलिड अगर लिक्विड में ही घुल गया तो क्या होगा उसमें? देखो, आपको ना एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है. अभी तक ना सॉलिड क्या है, वो कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, लिक्विड कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, गैस कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है. लेकिन ऐसा क्या हो अगर हमारा जो सॉलिड फॉर्म है वो हमारे लिक्विड के फॉर्म में एकदम पूरा 100% डाइल्यूट हो जाए, 100% उसका वहीं पे घुल जाए, तो क्या होगा? देखो, take some water in a glass. So first of all, before conducting this experiment, take a glass. Okay, now take a glass, and in that taken glass you have to mark the water level. Okay, mark the water level by pasting a paper outside the glass. Add 2 tablespoons of sugar to the water, stir it well with a spoon. Okay, now in that water
Now see, first of all you take a water in a glass, okay, and in this glass of water take 2 spoon of sugar, ठीक है, take 2 tablespoon of sugar, okay, and stir it well with the help of a spoon, okay. Now note the water level in the glass. आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने पानी लिया, उस ग्लास में आपने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है और शुगर को आपने स्टर किया, ठीक है, मींस आपने घोलने की कोशिश की उसमें। तब आप ये देखिए जब आपने शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है, नाउ यू हैव टू नोट द वाटर लेवल। अब वाटर लेवल देखिए, पहले देखिए वाटर लेवल आपका इतना है, मोर देन हाफ ऑफ ग्लास, ठीक है, तो वाटर लेवल को आप नोट करो, इट रिमेन्स द सेम। तो जब आपने वाटर लेवल को नोट किया, आपको क्या समझ में आया कि इन तीनों पिक्चर में, ठीक है, इन तीनों पिक्चर में वाटर लेवल सेम है, ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है। दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर इन इट, ठीक है, आपने शुगर ऐड किया वो भी 2 टेबल स्पून, ठीक है, फिर भी वाटर का जो लेवल है उतना ही है, पर वो हुआ क्यों ऐसा, ठीक है, तो यही इस एक्सपेरिमेंट का आंसर अभी हम देखेंगे। देखो what does this indicates, अच्छा इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला है, let's have a look. It indicates that when sugar is dissolved in water, sugar molecules fill up the empty spaces between the molecules of water, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सो हियर यू कैन सी, ये देखो ये लूजली पैक्ड है, ठीक है, दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये क्या, ये लूजली पैक्ड है, इनमें क्या, इनमें ये स्पेस खाली है सारे, देखो ये जितने स्पेस खाली हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, जो शुगर आपने ऐड किया ना, वो शुगर इन्हीं स्पेसेस को जाके फिल कर देता है, ठीक है, जब वो आप उसको मिला देते हो उसमें, वो शुगर क्या करता है, देखो ये रेड कलर्ड है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ब्लू कलर्ड है आपके शुगर मॉलिक्यूल्स। जब आपने शुगर को ऐड किया, वाटर लेवल क्यों चेंज नहीं हुआ, वो इसीलिए चेंज नहीं हुआ, ये जितने भी खाली जगह थी यहाँ पे वाटर में उसको फिल कर दिया शुगर ने, ठीक है, इसीलिए ये आपस में तो घुल गए, इसीलिए उसका कोई भी लेवल चेंज नहीं हुआ वाटर का, ठीक है। So the water level in the glass remains the same. We know that the molecules in a liquid are not very closely packed. Okay. Now, there are empty space between the molecules when sugar is dissolved. So this is the result of your activity. When sugar is dissolved in water, sugar molecules fill the empty space among the molecules of water as shown in the figure. So the water level in the glass remains the same, or the volume of water does not change. Okay, now the next topic is what is the meaning of solute, solvent and solution. ये तीनों अलग अलग टर्म है, ये क्या होते हैं। A solution is a homogeneous mixture. Okay, this simply means the components are uniformly mixed together. Solution क्या होता है, solution एक homogeneous mixture है, मतलब इसमें सारे जितनी भी चीजें घुली हुई है वो equal amount में है, ठीक है, वो uniformly mixed है, ठीक है, uniformly ये mixed है यहाँ पे। For example, so here you can take example. First sip of coffee is the same consistency as your final sip. A solution is made up of a solute, which is a substance being dissolved, and solvent. The substance is the largest into which solvent is dissolved. ठीक है, अच्छा solution क्या है, homogeneous mixture है, इसका example, best example क्या है, आप कॉफी पीजिए, जब आप फर्स्ट टाइम में जो पहला सिप लेते हो आप कॉफी का, उसका टेस्ट सेम वही होता है जो लास्ट सिप का होता है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ कॉफी को बनाने में जितने भी सॉल्वेंट्स का सॉल्यूट का यूज हुआ है वो सब क्या होता है, वो आपस में मिल जाते हैं और ये क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में वो मिक्सचर को बनाते हैं, ना कोई कम होता है ना कोई ज्यादा होता है, इसीलिए आपके कॉफी का पहला सिप भी वही होगा जो आपके कॉफी का लास्ट सिप होगा, ठीक है। इन शुगर सोल्यूशन, कॉफी में हम क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। शुगर क्या है, शुगर का सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर उसमें क्या है, शुगर को घोला गया है, मींस जिस चीज को आप घोलते हो, द थिंग्स व्हिच यू वांट टू डिसॉल्व इज कॉल्ड एज योर सॉल्यूट, इट मे बी शुगर, इट मे बी सॉल्ट, ठीक है, लेकिन आप शुगर को और सॉल्ट को किस में घोलते हो, वो किस में डिसॉल्व होते हैं, पानी में, मतलब लिक्विड में, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, आपका वाटर होगा,
ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, आपका वाटर है। जैसे कॉफी में आपका सॉल्वेंट क्या था, मिल्क था, ठीक है, मिल्क या वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सॉल्यूट क्या है कॉफी में, ये है शुगर है, ठीक है। Similarly, in salt solution, salt is the solute and water is the solvent. Okay. Now, gases dissolve in liquid. ठीक है, बहुत से ऐसे gases हैं जो liquid में भी dissolve हो जाते हैं, जैसे many gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water. Okay, so what are the name of those gases which can easily dissolve in water? The name of those gases are our oxygen and carbon dioxide. Okay, they can easily dissolve in water. Carbon dioxide is dissolved under pressure in soda water or soft drinks. When we open a bottle of soda water, dissolved carbon dioxide escapes rapidly in the form of bubbles. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वाटर में मिला है? सोडा बॉटल आप लोगों ने देखा है ना, जब सोडा पानी आप लोग पीते हो तो उसमें क्या होता है, जब बनाया जाता है, जब सोडा का बॉटल ओपन किया जाता है तो अचानक से नहीं पूरी लेयर बाहर आ जाती है, ठीक है, बबल्स के तौर पे। वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सी the water in lakes, rivers, ponds and seas has a lot of water dissolved in it. अब ऑक्सीजन कहाँ पे घुला रहता है, किस पानी में रहता है? ऑक्सीजन हमारा पानी में, लेक के पानी में है, रिवर के पानी में है, पॉन्ड के पानी में है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ठीक है। सो इन सारे के सारे सोर्सेज ऑफ वाटर में ऑक्सीजन क्या है, डिसॉल्व्ड है। इसीलिए जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स उस पानी में रहते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं। तभी तो मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय for every living creature. Okay, every living creature living on the land and living in the sea as well. Okay, so जो पानी के क्रिएचर्स है वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बिकॉज दे कांट सर्वाइव ऑन लैंड एरिया। तो ये कैसे होता है पॉसिबल, वो तो जमीन पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आपके फिशेस हैं, फिशेस तो जमीन पे आप लाओगे तो मर जाती हैं, पर वो पानी में कैसे जिंदा रहती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो पानी में घुला होता है। ओके, सो हियर यू कैन से दिस इज द एग्जाम्पल, फिश ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू dissolved water. Okay, so this is all in this chapter. Okay, so come with me and let's have a quick recap of this chapter, the things which we learn through this chapter. The first thing which we learn in this chapter is what is the meaning of matter. Here you can see anything that occupies space and having a mass is called as matter. Okay, matter exists in three forms: solid, liquid, gas. The matter is made up of very tiny particles called molecules, and these molecules are made up of very tiny particles called atoms. Okay, solid have a definite shape and size. Okay, liquid have no size, but they have a liquid have no size and shape. Okay, but they have a fixed volume. Gases neither have a shape, neither has a size. Okay, nor a volume. Liquid can flow or pour easily. The three states of matter are interchangeable, means we can change solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, then solid to gas. Okay, now this is all in this chapter. I hope, my dear student, you got a very good understanding of this chapter. Now revise this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.